पीएम फंड, देखिए जो मैंने कोविड ऐप के बारे में बोला वही पीएम फंड के बारे में बोल रहा हूं। उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया और किसको दिया। आप क्लियर कर दीजिए, ऑडिट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। Thank you, sir. Can I quickly go to Pallavi from CNN? Hi, Rahul. Rahul, can you hear me? Yes, Yeah. Pallavi. I'm in blue. Okay, I hope you're Pallavi, fine. have you lost weight? I hope I have. Thank you. You've lost weight, huh? Thank you so much. Okay, Rahul, I'm just going back to what Captain Amrinder Singh said a few days back. He said people sitting in Delhi cannot decide what the zones are, cannot dictate the policy. So two quick questions over here. One, you think there's a complete centralization as far as the policies and lockdowns are being decided? That's one. Second, Uttar Pradesh followed by Madhya Pradesh is coming out with these ordinances on labor laws, which means most of the labor's rights will be taken away because there's this worry that they're going back home and we don't have enough people to do work. So your quick reactions on these two: centralization, you think, and second, of course, on the labor. One is the truth is that people are very scared, and it is the right of people to be scared. If somebody is scared of a situation, you cannot just say, I'm not going to care about that. So reducing the fear that is rampant is critical. It is very, very important. And it is the right of workers, right of every Indian, to go where he wants, go back home. And it is the duty of the government not to bully them, but to make it easy for them as long as safety is maintained to go back home. I think that is important. Amrinder Singh ji is very concerned because some of the zones that they have made red are actually not red. And some of the zones that they have made green are actually red. Because the information at the center is wrong. So he's actually worried about that. Because when you are centralizing the decision on the zones, you're making mistakes. And then that is helping spread the disease. That is why it is very, very important that the zones are decided by the districts and by the chief ministers. So you think the states are not being taken on board? The center is deciding everything? रणदीप जी, बिलाल बोल रहा हूँ, मेरा भी एक सवाल है सर. एक second, Pallavi, the list is being compiled at the center and told to the states. This is a very serious problem. The list needs to be created by the state. PMs need to say, the disease is in a dangerous place. I want to make it a red zone. And then the chief minister has to decide that. It cannot be decided top down. It is actually taking us backwards in the fight. रणदीप जी, सवाल मेरे. Sir, can we go to Sanjay Mishra from Dainik Jagran? He's been waiting for some time. Thank you. Yeah. बताइए. संजय जी, सवाल पूछिए. सर उनका जी, मेरी आवाज आ रही है? राहुल जी नमस्कार. रणदीप जी, मेरा भी सवाल है. और राहुल जी मेरा सवाल इंटरलिंक्ड है. पहला सवाल यह है कि कृषि क्षेत्र को लेकर के सरकार ने अभी तक कोई स्पेशल पैकेज की घोषणा नहीं की है. अगर जो कोविड का सिचुएशन है उसमें जो दिखाई दे रहा है वो हमारा कृषि सेक्टर ही शायद देश की इकोनॉमी को बचाएगा. दूसरा इसी से रिलेटेड सवाल है कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, माइग्रेंट लेबर्स को कई स्टेट जैसे कर्नाटक, गुजरात और कुछ और स्टेट्स ने जबरदस्ती रोकने की कोशिश की है. एक आजाद देश में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के मजदूरों को जानवर की स्थिति में वहां रखने का शेल्टर का इंतजाम है और सरकारें बिल्डर लॉबी या दूसरी लॉबी के दबाव में वहां उनको रोक रही हैं, आने नहीं दे रही हैं. इन दोनों सवालों पे मैं आपसे चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का नजरिया क्या है. ये जो माइग्रेंट लेबर है, डेली वेज लेबर है, इनको रोकना बिल्कुल गलत है, इनह्यूमन है. मगर जब हम इनको भेजें, सेफली भेजें, टेस्ट करके भेजें और ये गारंटी करें कि वो सेफ है. पहला सवाल क्या था?
कृषि के क्षेत्र के लिए कोई पैकेज अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। अपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था 10,000 रुपए अर्जेंट इनकम सपोर्ट किसानों को, तो और हमने जो न्याय की बात की है उसमें किसान भी इंक्लूडेड होंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, मगर अब डिले नहीं करना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री को कहता हूं, डायरेक्टली यहां से कहता हूं कि अब आप प्लीज डिले मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। संदीप जी बिलाल, मेरा भी एक सवाल। अमर उजाला से विनोद अग्निहोत्री जी, गो अहेड प्लीज। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हैं अमर उजाला से। हाँ जी, राहुल जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि कोविड के नाम पर सरकारों को बहुत ज्यादा इमरजेंसी अधिकार मिल गए हैं और लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स और लेबर राइट्स को जो है कंट्रोल किया जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने लेबर रिफॉर्म्स के नाम पर बहुत सारे लेबर राइट्स जो है वो खत्म कर दिए हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी का और आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक राइट्स को कर्व करने का एक तरीका कोविड के नाम पर एडमिनिस्ट्रेशन को, अथॉरिटीज को मिल गया है। हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है कि हिंदुस्तान को किस प्रकार से चलाया जाएगा, क्या रूल्स होंगे, क्या अधिकार दिए जाएंगे लोगों को, और हम उन अधिकारों को डिफेंड करेंगे। जरूर इमरजेंसी सिचुएशन है, कोविड बीमारी और जो लॉकडाउन है इमरजेंसी सिचुएशन है, मगर ये जो